सदाशिवसमारम्भाम् सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। वसुदेवसुतं देवम् वसुदेवसुतं देवम् कंसचाणूरमर्दनम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। So we'll say the 12th shloka of 12th chapter, which is the summary of teaching, which we'll talk today, right? But that's interesting. So it's a 12th shloka of 12th chapter. Shreyo hi jnanam abhyasat श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्ति अनन्तरम्. त्यागात् शान्ति अनन्तरम्। And now we'll say Arjun's Prarthana, which is our Prarthana. Arjun has done on our behalf too. We'll say that and then get into the subject. कार्पण्यदोषो उपहत् स्वभावः कार्पण्यदोषो उपहत् स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। So Arjun is saying, Bhagavan, I'm little confused, deluded, which we all get time to time. Like the situation Arjun is in, like same situation we come across. And so he's saying that I tried my best, but I am not finding the solution. So tell me what is Shreyas, the best solution, best choice in this situation. But I surrender to you as your shish. So Shadimam Tvam Prapannam. Meri buddhi ko give me the right direction. And that's what our prarthana is. That's the reason we are reading Bhagavad Gita, because we need Bhagwan's guidance. It's like that. So, and Bhagwan is the best guide we found. So that's the prayer. So now we are on Bhakti Yoga. We are like 12th chapter, which is Bhakti Yoga. Again, this is again I repeat also many times people ask Bhakti Yoga अलग ऐसा अलग अलग कुछ भी नहीं भगवान ने बोला है. It is all our acharyas. They have, for our help, they have divided these chapters. They have given the titles so that it's easy for us to understand. But भगवान ने ऐसा कोई अलग एक्सक्लूसिवली नहीं बोल रहे हैं कि अर्जुन ये भक्ति योग बता रहा हूँ तेरे को, या ये कर्म योग, ये ज्ञान, ऐसा भगवान ने अलग. लेकिन हमें for our ease, our acharyas, our Shankaracharya or other acharyas, they have done a wonderful job for us, divided into chapters, so it helps us. बट लेकिन उसमें ज़्यादा कोई ऐसा कन्फ्यूजन नहीं कि अलग से कुछ आइसोलेशन में भगवान बता रहे हैं कि ये भक्ति है, ऐसा ऐसा नहीं. इट इज़ ऑल integrated teaching. It is not like a separate teaching that ये अलग है. So we are at that stage which we title it Bhakti Yoga. And last time we saw that Bhakti movement is very old, like 1200 years, around that 12th century Bhakti movement started. And one of the reason was that our acharyas realized, and Bharat, that time Bharat had a lot of social disturbances, and the society was in kind of a disarray for many reasons, right? Invaders, and there was some other social problems were there in Bharat that time. So that time our acharyas, I'm sure there is no recorded history of, like if you analyze, we can come to that conclusion that our acharyas realize that yeah, उन लोगों को क्या होगा जिनको या तो संस्कृत पढ़ना, या उस समय जो भी भाषा रही होगी संस्कृत पढ़ना नहीं आता, या उस समय श्रुति परंपरा थी. दोज हु डोंट हैव टाइम टू गो टू गुरुकुल एंड लिसन, बिकॉज उस समय तो लिखते नहीं थे, श्रुति थी. नॉट एवरीबडी हैज टाइम टू गो टू आश्रम एंड सिट देयर एंड डू द श्रुति एंड रिमेंबर थिंग्स. So they come up with this thought that yeah, this teaching should go to everyone. And that time Ramanujacharya, Vallabhacharya, all those acharyas, and then the same link we think that Meera ji, Tulsi Das, Nanak, all these people came later on, the Bhakti movement.
बट नथिंग बट देयर इज नॉट डिफरेंट, लाइक द टीचिंग इज सेम, उन्होंने उसको सिंपल बना दिया, उसको भजन बना दिया, किसी ने दोहे बना दिए कबीर ने, बात एक ही है, सब वही तत्व की बात कर रहे हैं, ये भगवान है और ये भक्त है और ये संसार है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी पढ़ लो आप, तीन के अलावा कुछ नहीं है। ये एक संसार है, ये इसमें इसमें झंझट है, एक भक्त है, तेरे को तकलीफ है, और मैं भगवान हूँ, अब मेरे पास किसी तरीके से आ जाओ तो इस संसार से छूट जाए, बस दैट्स इट। घूम फिर के टीचिंग इतनी सी है, तो उन्होंने उसको आसान बना दिया, दैट इज भक्ति मूवमेंट। बट द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ भक्ति मूवमेंट विच आई पर्सनली फील इज Prabhupada when he came to America. And that is by chance. I mean, coincident, divine coincidence. He came to America at the age of 70 when there was a hippie movement going on in America. And there was, again, the society was in like a need of something which can give them solace. And probably he started with that ki bhajan karo and Hare Krishna, Hare Krishna. And look at, we all know that. I mean, now ISKCON is a is a living history. It's not a history, it is still living. सो दैट्स द पावर ऑफ भक्ति मूवमेंट, दैट्स द पावर ऑफ भक्ति की। बस भगवान से आपको डायरेक्ट बात करनी है, कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं, लेकिन समझ के करो तो और आनंद आएगा, दैट इज़ भक्ति। सो दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग। एंड देन अगेन, लाइक जैसा मैंने बताया कि तुलसीदास जी तो विद्वान भी थे। आई मीन द वन हु कैन ट्रांसलेट संस्कृत में लिखी हुई वाल्मीकि रामायण को आम लोगों की भाषा में बना देना, अवधि में जो भी कोलोक्वियल लैंग्वेज थी, बहुत विद्वान होना चाहिए आदमी। एंड ही वॉज, वी ऑल नो दैट तुलसीदास जी वॉज लाइक a genius scholar, but he translated all that teaching into common man's language. तो दैट इज भक्ति। उसमें भी सब सब समझ के डाला उन्होंने, ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी लिख दिया, एवरीथिंग इज, सो दैट इज, सो इट इज, देयर इज नो सेपरेशन कि भक्ति अलग है और ज्ञान अलग है। It is all our acharyas have put together thing. For we are lucky to have everything, whatever you want to use it the way. So that was the bhakti movement, and this chapter is bhakti, bhakti योग टाइटल है। और भक्ति के कई, ऐसा नहीं है भक्ति इज ओनली फॉर भगवान, भक्ति इज फॉर if there is a cause, if you are cause for well-being. Again, when we are doing a study of Bhagavad Gita or any shastra, all these teachings are for well-being. इसलिए तो हमारी तो प्रार्थना ही सर्वे भवन्तु सुखिनः इसीलिए है कि मैं कुछ भी पढ़ रहा हूँ, इफ आई वांट दिस एलिवेशन, आई वांट अदर्स टू बी पार्ट ऑफ इट, दैट्स इट, एंड दैट इटसेल्फ इज अ भक्ति। सो किसी कॉज के लिए भी अगर खड़े होना है, इसलिए हमारे देश में तो पेट्रियाटिज्म को देशभक्ति नाम दे दिया। क्या बात है, वेरी फ्यू कंट्रीज कैन कम अप विद दिस, लाइक देशभक्ति नाम ही दे दिया कि देशभक्ति। भगत सिंह को उसकी माँ ने पूछा था, ये सब रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, कि बेटा जवान हो गया है, अभी अभी शादी करना है तेरे को? मतलब मेरी शादी तो हो गई है। तो तेरी शादी किससे हो गई है? आज़ादी से हो गई है। क्या बात है, आज़ादी से शादी कर ली, अब क्या है, बस दैट इज़ देशभक्ति। सो तो भक्ति का बड़ा प्यारा स्वरूप है एक्चुअली, जैसे भी हम उसको उसका आनंद उठाना चाहें। लेकिन भक्ति एंड ज्ञान, दे आर नॉट सेपरेट। मुझसे ज़्यादा इसको बहुत ज़्यादा कोई जान भी नहीं सकता। मुझे लगता है किसी आचार्य के भी के जीवन में ये नहीं आया होगा कि वो जाने कि भक्ति और ज्ञान में कोई सेपरेशन नहीं है। उन लोगों ने तो एनालाइज किया होगा, मैं तो जी रहा हूँ तो भक्ति और ज्ञान में कोई फर्क नहीं है, एक ही है, दोनों सेम है, राइट। सो आई एंजॉय दैट वेन एवर आई रीड भक्ति और ज्ञान के बारे में सो विद दैट विल कंटिन्यू, विल completed eighth slok, so we'll just recap, then we can go to 9, 10th, 11th, 12th. All these things are individually incomplete without each other. Yeah, there's कुछ अलग है ही नहीं ना, वो तो चिवड़ा है। They're incomplete. चिवड़े को अगर आप खाना है, भाज हमारे भारत का बनता है, उसको अलग से कैसे खाओगे? मुरमुरा भी चाहिए, और उसमें सेव भी चाहिए, और उसमें मूंगफली भी चाहिए, तो चिवड़ा तभी चिवड़ा है। तो ये सब आनंद एक ही है पूरा। So we'll continue with eighth shlok. We'll just recap eighth shlok of 12th chapter. Last time we did that, which Bhagwan is saying that कि you, and this is again, भक्ति हमारे आचार्य ने बहुत अच्छा टाइटल दिया इसीलिए उसको। तो भगवान इज सेइंग कि निवशिष्यसि मय्येव, इफ यू focus your mind and buddhi on me, devoted, that's what devoted, then you will never be separated from me. तो जैसे नवीन भाई बहुत सत्संग करते हैं, तो उनके 3 नंबर बना दिए भगवान ने कि लगे रहो आप, बंद नहीं हो सकता आपका सत्संग तो भगवान देखिए, आप यही प्रॉमिस किया उन्होंने कि इन्वेस्ट इन मी एंड आई विल नॉट बी सेपरेट फ्रॉम यू। so that's what he's saying. So we'll recap 8 say मय्येव मन आधत्स्व
मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय मयि निवेशय निवसिष्यसि मय्येव निविशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अत ऊर्ध्वम न संशय। इसलिए हे अर्जुन, तू मेरे में मन को लगा और मेरे में ही बुद्धि को लगा। इसके उपरांत तू मेरे में ही निवास करेगा, अर्थात मेरे को ही प्राप्त होगा। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। So Shripal ji nahi hai, but anyway, English, Naveen bhai, if you want to read, we can go over just quickly. Yeah. Therefore, fix your mind on me and establish your intellect in me alone. Thereafter, you will abide solely in me. There is no doubt about it. Yeah. So nivesh word jo hai, that is used for investment also in something. And that's what he is saying. Nivesh, put yourself with man and buddhi. अब मन बुद्धि हम लोग एक्चुअली क्या होता है, श्लोक वगैरह लिखते हैं तो बिकॉज ऑफ द मीटर दे हैव टू समटाइम यूज, बट मन और बुद्धि कोई अलग अलग कुछ नहीं है, अंतःकरण है वो सेपरेट है। बट भगवान इज सेइंग कि विद मन बुद्धि एक ही चीज़ है। कंप्लीटली इन्वेस्ट इन मी। इफ़ यू इन्वेस्ट इन मी देन तू मेरे में ही निवास करेगा। दैट मीन्स यू विल आई ऑलवेज बी अवेलेबल टू यू। इट्स लाइक इन्वेस्टमेंट, रिटर्न एकदम गारंटेड है। या इन्वेस्ट करके तो देखो, then you will just always enjoy my company or my presence. And that's what happens. We all know that कि हम जो भी साधना करते हैं सब हम लोग, we I think we are all doing some or other way and we can feel that, right? The only problem हमारी है कि हमारे पुराने वासना है, संस्कार, और because of रजोगुण, whatever we have, तमोगुण, we sometime come down to the ladder, come down of the ladder and then we go up and come down. हमारा चलता रहता है, लेकिन we all feel that भगवान की presence, various names उसको देते हैं, लेकिन we all feel it. So this श्लोक is very true and we can practically feel that. हम जब ध्यान करते हैं या भजन करते हैं, कुछ भी करते हैं, जप करते हैं, we can feel that. लेकिन लेकिन जी, there is one word which kind of caught my eye. Yeah, जैसे आपने emphasis निवेश या में किया, yeah, उससे पहले आया था आदत साव। yeah. आदत में जैसे किसी को कहने में बोलते हैं आदत करो इस चीज की, आदत इसकी आदत होनी चाहिए। हाँ, तो नहीं दिस वो काइंड ऑफ कॉट माय आई। या आदत तो मीन्स आदत तो मीन्स फिक्स बोलते हैं ना कलोकियल लैंग्वेज में, बोलते हैं हाँ, आदत, राइट आदत हो गई है। या राइट। वो अभ्यास आएगा अगले श्लोक में, 12 में आएगा अभ्यास, वो आदत आएगा या 12th में आएगा, राइट। अभ्यास वो आदत है, राइट। या सो हियर भगवान इज यस कि कॉन्स्टेंटली कि फिक्स योर, देन आई विल बी अवेलेबल। सो Adapa means fix, actually. या इट इज फिक्स, That's the same thing as others. फिक्स डिपॉजिट, वो इन्वेस्टमेंट है ना। आदत तो निवेश है, फिक्स डिपॉजिट कर दो, यू गेट द इंटरेस्ट, राइट। So we'll go to the 9th श्लोक। अथ चित्तं समाधातुं अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम् न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो माम् अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुं धनंजय। इच्छाप्तुम धनंजय। और यदि तू मन को मेरे में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मेरे को प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। और अभ्यास रूप में टिप्पणी है, भगवान के नाम और गुणों का श्रवण, कीर्तन, मनन तथा श्वास के द्वारा जाप, जप और भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का पठन, पाठन इत्यादि चेष्टाएं भगवत प्राप्ति के लिए बारंबार करने का नाम अभ्यास है। If you cannot steadily fix the mind on me, Arjun, then seek to attain me through the yoga of practice. So now see, typically when हमारे बच्चे भी होते हैं, हम लोग भी, when we are young, our parents or teachers, they give us option कि भाई तेरे को स्पोर्ट्स में, स्कूल में जैसे हम लोग फॉर्म भरते हैं तो you have to play something. I say, oh, I cannot play soccer. Okay, then can you play this game? No, can you play this music? But there is, so the teacher or the parents, they give options. तो भगवान ही अर्जुन को ऑप्शन दे रहे हैं। वो बड़ा स्मार्ट टीचर है कि तेरे से ये नहीं होता है, चलो अच्छा ठीक है। तो अभी बोलने कि इन्वेस्ट करने में प्रॉब्लम है, तो लेट्स कम डाउन लिटिल लोअर लेवल। एंड ही इज सेइंग अथ चित्तम मयि स्थिरम समाधातुम न शक्नोषि। Samadhatu means, again, this said, if you are not able to do that, na shaknosi means if you think
यू आर नॉट. अर्जुन वॉज स्मार्ट बट दिस. सो ऐसा नहीं कि अर्जुन ये सब कर नहीं चुका था. सी दैट इज वेयर भगवद गीता इज वेरी गुड टीचिंग, बिकॉज अर्जुन, हम लोग को सब होता है, वी आर ऑल एजुकेटेड, वी ऑल नो ऑल दीज थिंग्स, हमारे लिए कुछ भी नया नहीं जो भगवान बता रहे हैं. लेकिन वाई स्टिल वी गो बैक. माई फादर यूज टू से दैट कि what happens because of the रजोगुण एंड तमोगुण. ही यूज टू गिव एन एग्जाम्पल. अभी तो है नहीं वो, लेकिन मैं जब भी शाम को प्रार्थना करता हूँ उनका एग्जाम्पल मुझे हमेशा याद आता है. वो कहते थे कि हम लोग का जो रजोगुण तमोगुण की वजह से जैसे रबर को खींचते हैं ना, तो हम लोग शाम को ऐसा प्रार्थना करते हैं ऐसे रबर को, और जैसे ही प्रार्थना खत्म होती है छोड़ते हैं तो रबर वापस आ जाता है. सो इसलिए हमारी बिकॉज ऑफ रजोगुण एंड तमोगुण. सो दैट्स व्हाट भगवान कह रहे हैं, इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू, जो ऊपर मैंने बताया है, तो भगवान कह रहे हैं अभ्यास योगेन माप इच्छाम तुम धनंजय. अभी आपने जो बताया था ना शिवाम जी, आदत, वो अभ्यास की बात आ गई. तो भगवान कह रहे हैं कि अभ्यास के द्वारा मेरे को प्राप्त होने इच्छा प्राप्त करने की इच्छा कर. अब विल गो फर्दर. 12th श्लोक तक अभ्यास की बात चलेगी. सो भगवान इज गिविंग एन ऑप्शन. और अभ्यास क्या है? सिंपल है, भगवान का नाम लेना. दैट इज अभ्यास. वेरियस वेज आर देयर, बट श्रवण मनन कीर्तन भगवान. लेकिन विल टॉक अबाउट इन 12th चैप्टर में उसको भगवान ने और डिस्क्राइब किया है. सो भगवान इस सही किया, अभ्यास तो कर सकता है, चलो मन, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा उधर हायर लेवल समझ रहे हैं, तो चलो अभ्यास करो. देन भगवान विल 10th श्लोक में विल गिव अनदर ऑप्शन. ये सब ऑप्शन दे रहे हैं भगवान, बड़े प्यारे प्यारे ऑप्शन है. राइट नाउ ही आर सेइंग अभ्यासे अपि असमर्थोसी अभ्यासेऽप्य समर्थो असि मत्कर्म परमो भव मत्कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि. कुर्वन् सिद्धमवाप्स्यसि. और यदि तू ऊपर कहे हुए अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो. इस प्रकार मेरे अर्थ कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा. और मेरे करने, ये परायण का टिप्पणी में लिखा है, स्वार्थ को त्याग कर तथा परमेश्वर को ही परम आश्रय और परम गति समझकर निष्काम प्रेम भाव से सती शिरोमणि पतिव्रता स्त्री की भांति मन वाणी और शरीर द्वारा परमेश्वर के लिए ही यज्ञ दान और तपादि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों के करने का नाम भगवत अर्थ कर्म करने को परायण होना है. If you are unequal even to the pursuit of such practice, be intent to work for me. You shall attain perfection, meaning shape of my realization, even by performing actions for my sake. Yeah, so now various commentaries are there on this कि अगर अभ्यास लाइक कर्म योग का अभ्यास नहीं कर सकता है तो समर्पण कर दे. तो भगवान इज सेइंग कि इफ यू कैन नॉट, इफ यू आर नाउ अनदर ऑप्शन, लाइक बच्चों को जैसे ऑप्शन दे देंगे, ओके ओके ना यू डोंट वांट टू डू दिस, पर करना तो पड़ेगा. लाइक स्कूल में ले जाते हैं तो यू हैव, एज आई सेड कि यू हैव टू टेक सम दिस सब्जेक्ट, ओके, बट यू हैव टू टेक इट. सो भगवान इज अ गुड टीचर. ही इज मेकिंग श्योर दैट अर्जुन को जो अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है, जो अर्जुन अंत में बोलेगा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा. अर्जुन इज लूजिंग हिज आइडेंटिटी एज अ वॉरियर. दैट टाइम इज द ड्यूटी, स्वधर्म एंड डिल्यूजन, मोह हो गया था. तो अर्जुन अंत में ही बोलेगा नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा. एंड भगवान नोज दैट कि मुझे अर्जुन से ये बुलवाना है कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, कि मेरे को आई रीगेन माई आइडेंटिटी. एंड दैट इज़ वॉट आवर गोल ऑफ डूइंग ऑल दिस स्वाध्याय. जितने भी हम ये सब प्रवचन सुनते हैं, जो भी भजन पूजन करते हैं, एक ही गोल है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा. हम सब पोटेंशियली डिवाइन है, जैसे विवेकानंद बोला करते थे. हम सब एक्चुअली, लेकिन हम उलझ गए शरीर पे, हम भूल गए, एंड मोह, बिकॉज ऑफ द मोह. So Bhagavan is giving option to make sure that Arjun says at the end, and he'll say, we'll see at the end of the Bhagavad Gita. So Bhagavan is saying कि अगर अभ्यास भी नहीं कर सकता तो another option है कि चलो मत परायण मीन्स मेरे लिए काम करो, छोड़ो. I mean, we know the story very famous कि वो एक राजा था and he was kind of deluded. उसको विरक्ति हो गई, जैसे हमारे निवृत्ति और प्रवृत्ति दो मार्ग हैं. निवृत्ति हो गई. राजा को निवृत्ति नहीं होनी चाहिए, इट्स लाइक दैट, हमारे शास्त्र कहते हैं. तो गुरु जी के पास गया कि मेरा मन नहीं लगता अभी, तो मेरे को आई डोंट फील लाइक, तो मैं तो जाना चाहता हूँ. तो गुरु जी ने कहा क्या प्रॉब्लम थी? बोला ये बहुत स्ट्रेस हो जाता है, ये काम बहुत
आई मीन आई हैव लॉट ऑफ स्ट्रेस बिकॉज ऑफ ऑल दिस वर्क. तो उन्होंने कहा ओके एक काम करो, तो कैन यू डू समथिंग फॉर मी सर. ओके आप बोलिए गुरु जी क्या करते हैं. बोले एक पेपर लेके आओ एंड राइट योर विल. विल लॉयर वॉयर को बुलाया. उन्होंने कहा विल में लिख दो कि ये पूरा राज एवरीथिंग आई गिव इट टू माई गुरु जी, साइन इट. उसने बोला ठीक है कर देता हूँ. अब गुरु जी ने बोल ही दिया तो उससे साइन कर दिया कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू गुरु जी. गुरु जी से नाउ आई एम राजा. ही सेड या ओके नाउ यू आर माई सर्वेंट राइट. ही सेड ओके नाउ डू व्हाट आई से. और गुरु जी ने उससे सारा काम करा लिया. ना जस्ट बिकॉज ही इज नो मोर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम वही करना था उसको. सो दैट्स व्हाट भगवान ने मेरे को परायण कर दे. तेरे को नहीं तो लगता है तो मेरे लिए कर तू. सो दैट्स व्हाट गुरु जी ने, मेरे लिए कर अब नौकरी, तेरे लिए नहीं करना है. एंड भगवान इज गिविंग दैट ऑप्शन. तो पहुंचेगा वहीं. भगवान से कुर्बन सिद्धिम अवाप्यसी, मुझे ही प्राप्त हो जाएगा. Hey, can you अभ्यास expand? Can you expand on this? I mean, our daily lives, we all do our jobs and all these things. How do we apply this to our daily life? So, I mean, so one example, another example, रामकृष्ण परमहंस जो देते थे, किसी ने उनको यही प्रश्न किया जो परविंदर जी आपने पूछा भी कैसे करें हम. तो उन्होंने कहा था एक काम करो, एक पैर से हाथ भगवान का, एक हाथ से भगवान का पैर पकड़ लो और एक हाथ से संसार को पकड़ लो, तो फिर बैलेंस हो जाएगा. लेकिन अगर भगवान का हाथ छोड़ दोगे तो फिर संसार ले डूबेगा तुम्हें. तो इट्स लाइक दैट. वो तरीका वही है, ये जो बता रहे हैं भगवान. आगे श्लोक भी आएगा, अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास से ज्ञान में जाना पड़ेगा और फिर हो वो जाएगा. वही तो वही परविंदर जी 12 चैप्टर में आपके प्रश्न का उत्तर भी आ जाएगा 12 श्लोक में अभी जब पहुंचेंगे हम. राइट. सो विल ठीक गो टू 11th श्लोक. राइट. ठीक ठीक. या अथेदत अपि अशक्तोसी अथैदप्यशक्तोऽसि कर्तुम उद्योगम आश्रितः कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम सर्वकर्मफलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान. अतः कुरु यथात्मवान. और यदि इसको भी करने के लिए असमर्थ है तो जीते हुए मन वाला और मेरी प्राप्ति रूप योग के शरण हुआ, सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग कर. If taking recourse to the yoga of my realization, you are unable even to do this, then subduing your mind and intellect, etc., relinquish the fruit of all actions. सी अब भगवान कहना चलो अगर ये भी नहीं कर सकता है कि मेरे लिए काम करना, तो काम भी तू ही करता रहे. क्योंकि हम लोगों को अहंकार होता है कि मैं करूँगा, अभी मैं प्रेसिडेंट बनूंगा या मैं डायरेक्टर बनूंगा, मैं आई एम द ओनर. भगवान कहते चलो ठीक है, क्योंकि वो हमारा रजोगुण है, वो मानता नहीं है. तो भगवान कहते ओके चल ओनर भी रह जा, लेकिन ये जो फल आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है, दैट यू कैन सरेंडर. तो अभी परविंदर जी आपका उत्तर आएगा 12th श्लोक में. आप बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया. जैसे कहते हैं ये स्वाध्याय, सत्संग और स्वाध्याय की महिमा है कि जब हम लोग सब साथ बैठते हैं. सत्संग की एक खूबी भी है कि इट इज़ अ हारमोनियस थिंकिंग दैट टाइम हैपन, एंड दैट इज सत्संग. सत्संग में अगर हम सबकी एक जैसा चिंतन नहीं होगा तो इट इज़ नॉट अ सत्संग. इट कैन बी जस्ट हियर एंड देयर डिस्कशंस. इसके लिए हमारे यहाँ सत्संग की महिमा है कि आप बैठ के अपने लोगों के साथ, अपने जैसे लोगों के साथ चर्चा करें. बिकॉज दैट्स वेयर दिस हारमोनियस थिंकिंग कम्स. सो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली. सो भगवान इज सेइंग कि चल तू, तेरे को कम से कम काम भी करना है तो करता रहे, बिकॉज रजोगुण है तो करेगा. लेकिन ये जो कर्म करेगा तो जो फल आएगा, बिकॉज एवरी कर्म हैज़ ए फल, एंड दैट इज भगवान ने पहले ही बोल दिया. 3rd चैप्टर इज, सो दैट्स द रीज़न भगवद गीता आगे, वी ऑलवेज से दैट कि भगवद गीता को पूरा समझना है तो 2nd and 3rd चैप्टर को वी हैव टू कॉम्प्रिहेंड. कॉम्प्रिहेंड मीन्स 2nd and 3rd चैप्टर को तो बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग टॉट आफ्टर दैट इज बेस्ड ऑन 2nd and 3rd चैप्टर. If we miss 2nd and 3rd chapter, then many times sometimes we think, oh, Bhagavan is giving contradictory statements because we have not comprehended. So 2nd and 3rd chapter, 2nd chapter is Gyan Yoga, which we call Sankhya, and 3rd chapter is Karma. योग नहीं है, वो हम लोगों ने जोड़ दिया है. बट आइडियली भगवान ने समझाया है कि सांख्य क्या है या ज्ञान क्या है और आत्मज्ञान क्या है. और 3rd चैप्टर में भगवान ने बताया कर्म क्या है, नॉट कर्मयोग. कर्म क्या है, कर्मयोग तो बन जाता है बाद में, लेकिन कर्म क्या है, दैट इज अंडर. सो दैट्स व्हाट कर्म का प्रिंसिपल क्या है बेसिकली, इफ यू से दैट. सो द कर्म का प्रिंसिपल ये है कि
देर इज, जब भी कर्म होता है, सो कर्म, देर इज अ कर्ता और देर इज अ कर्म फल, दैट्स इट. सो देर इज अ कर्ता, देर इज अ कर्म और एक कर्म फल. दैट इज व्हाट द डोमेन ऑफ कर्म. सो भगवान इज वेरी स्मार्ट. भगवान इज सेइंग भाई तो कर्म तो तू करेगा, रजोगुण है तो मानेगा नहीं, फल भी आएगा, और फल मुझे दे दे. अगर तेरे को कर्म करना है, तेरे को लगता है कि मैं कर्म तो नहीं छोड़ सकता, क्षत्रिय है कैसे छोड़ेगा, उनको पता था कि छोड़ेगा कैसे, अभी फिर लड़ाई शुरू कर देगा दूसरी. हम सब वी हैव रजोगुण, राइट? तो वी हैव टू कीप डूइंग दैट. और मन मानेगा नहीं. हम अगर हमसे कोई बोले, दैट्स व्हाट आई ऑलवेज फील कि आप 5 मिनट बोलो किसी को कि 10 मिनट आपको ध्यान में बैठना है, तो बहुत मुश्किल है. रजोगुण इतना है कि हम 10 मिनट बिना कुछ किए बैठ नहीं सकते. कुछ तो भगवान से दें कि ठीक है मेरे लिए काम कर, फिर फूल तोड़ो, फिर आरती कुछ भी करो, मेरे लिए करो. सो दैट्स व्हाट भगवान इज सेइंग कि सर्व कर्म फल त्यागम, मेरे लिए तो कर्म का फल. मतलब You said something extremely good. Haven't thought like this. I just came to me. You said कर्म करो फल मेरे को दे दो. हमारी आदत ये है कि हम कर्म तब करते हैं पहले फल की सोचते हैं. वाई ना, व्हाट इज इन फॉर मी, तो अमेरिका तो फिर ये इज नोन ये है. फॉर दैट. लेकिन ये जो आपने बात कही ना फल मेरे को दे दो, वो जो है वो त्याग का है. एग्जैक्टली. वो अगले श्लोक में आएगा ना, देखिए अगले वो श्लोक में उसका वो बहुत प्यारा. उसमें त्याग आ जाता है कि तू फल मेरे को दे दो. फिर जब That's कर्म right. करोगे तो फल की इच्छा से नहीं करोगे. That's right. पहले भगवान कह चुके हैं माँ फलेशु कदाचन. दैट वाज द हॉलमार्क ऑफ ऑल द टीचिंग. कर्म, जब कर्म समझाया था भगवान ने, तो उस समय ये श्लोक आ चुका है 247. That was So now the 12th श्लोक में now भगवान is summarizing everything and giving in one 12th. इसलिए मेरे हिसाब से तो 12th श्लोक is the summary of entire teaching, not of भगवत गीता. कोई भी teaching आप ले लें, it is not outside of 12th श्लोक. they also, so this is a central, this is a middle Exactly. 12th of 12th, right? Like yeah. of वो उसका कुछ एक्रोनिम भी अच्छा बन जाता है, 12-12, like T20 टाइप ऐसा. So now we'll go to the 12th श्लोक, which is summary of all previous 4-5 श्लोक. श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागः ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शांति अनंतरम. त्यागात् शांति अनंतरम. बहुत क्योंकि प्यारा मर्म श्लोक को न जानकर किए हुए अभ्यास से परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है, और परोक्ष ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, तथा ज्ञान से भी सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग करना श्रेष्ठ है, और त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है. Knowledge is better than practice. Meditation on God is superior to knowledge. The renunciation of the fruit of action is even superior to meditation, for peace immediately follows from renunciation. Oh, good. So lot of commentaries are there. Everybody has their, like all our scholars, acharyas, they're well versed and they have realized things, so their commentaries are there. But it is not Bhagavan is giving this is better, that is better. It's not like, because this is one path. This is spiritual path. This is the ladder, abhyas, gyan, dhyan, karma. So Bhagavan in a way saying कि start from this abhyas, then you will automatically rise yourself. जैसे कहते हैं ना कि balloon में जब, like the balloon which floats, once you fill the air in the balloon and leave it, then balloon has its own trajectory or journey. So this is like that. So when you start with abhyas, then you have your own journey. We don't have to worry too much about agla kya hoga. That's what Bhagavan is saying here. So first thing is abhyas. We'll spend some time. This is a wonderful. This is that actually the essence of all the teaching. So we can spend good time on this, because once we get it, we get the entire Bhagavad Gita. So Bhagavan is saying abhyas, but again abhyas is like practice, but practice without understanding, it is mechanical. And we know mechanical terms, we always use that. So it is not mechanical. When Bruce Lee को किसी ने पूछा था, Bruce Lee, we all know Bruce Lee, the martial arts expert, right? Somebody asked him that he was fearless guy because he could kill a snake, right? Bruce Lee was like that. He was one of the so far in the history, no, we have never seen a martial art expert like that. आप लोगों ने नहीं देखी तो मूवी देखिए, एंटर द ड्रैगन, उसकी काफ़ी सारी हैं. Somebody asked that Bruce Lee, I mean,
you have no fear for anyone because nobody can touch you, right? So, but do you fear someone? You're so perfect in martial arts because he was perfect, right? Uske koi movie dekhi to, and these were true movies, right? So he said very powerful. He said, "I'm not afraid of someone." They said, like, you know so many tricks. So he said, "I'm not afraid of someone who knows 1,000 tricks. I may be afraid of someone who practices one trick 1,000 times. That I'll be scared of person." सो दैट इज भगवान सिंह। अभ्यास का मतलब है कि आप समझ के एक चीज को ऐसा करो कि यू बिकम परफेक्ट, लेकिन मैकेनिकल नहीं। कार को क्या है, 35,000 माइल चलती है, इफ यू डोंट गेट द ऑयल चेंज इल कीप रनिंग, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कार वन से हो, मैं अभी स्मार्ट कार आ गई है, बट स्मार्ट कार में भी ब्रेन तो हमारा ही है ना, कार का तो कुछ भी नहीं है ना। वो तो चिप भी हमने लगाई है, मनुष्य ने लगाई, कार ने थोड़ी चिप बनाई है कि मैं चिप बना लेती हूँ अपने लिए। तो कार वॉन्ट से यार ड्राइव 40-50,000 माइल, डजेंट मैटर, यू इंजन विल स्टॉप वर्किंग, बट सो मैकेनिकल। सो यहाँ भगवान ये कह रहे हैं कि जो अभ्यास है ये, आई मीन वी आर ऑल पीपल हु अंडरस्टैंड। सो भगवान इज सेइंग कि अभ्यास से ज्ञान श्रेय, इसलिए कि अभ्यास को समझ, जैसे मेडिटेशन करना है, अभी मेडिटेशन इज अभ्यास, लेकिन क्या है मेडिटेशन? वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? वी हैव टू टॉक टू समवन, मे बी गो टू अ टीचर और समवन दैट, and that teacher or acharya will tell you, oh, this is meditation, and then you do the practice. Otherwise your practice will become mechanical, and हो सकता है आप करते भी रहो और उसके बाद बोलो, जैसे अभी हम मेडिसिन है, आई मीन देयर आर ओवर द काउंटर मेडिसिन आर अवेलेबल, और दैट्स व्हाट दे से, लाइक उसमें लिखा रहता है कि इफ़ यू कैन टेक टाइलेनॉल फॉर 4 days or 5 days if you have pain, but if pain doesn't go, better see your doctor. डोंट ट्राई अपने अपनी मर्जी से कि टाइलेनॉल आपको 5 ही दिन खानी है, 5 दिन में नहीं होता तो गो सी योर डॉक्टर, देन डॉक्टर विल टेल यू अब आपको क्या खाना है, प्रूफेन खानी है या कुछ दूसरी देनी है उनको ऐड, बिकॉज सो दैट्स व्हाट अभ्यास का मतलब है कि जस्ट डोंट डू इट मैकेनिकल, फाइंड आउट, एंड सो बिकॉज दिस इज अ लैडर, वी हैव टू प्रोग्रेस। सो दैट्स व्हाट भगवान इज सेइंग कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। सो नाउ वी कैन से इन सिंपल टर्म्स, अभ्यास, knowledgeless abhyas is mechanical. That's what Bhagavan is not saying. It has to be encapsulated, it has to be attached with knowledge. So that's what the next step Bhagavan says. Shreyo hi jnanam abhyasat. Jnana is next step. Shreya means next step. अभी next step means what? We need to go and study the शास्त्र. आपको अभ्यास करना है, लेकिन शास्त्र इन द सेंस जो भी रिसोर्स अवेलेबल है, go and find out कि, और नाउ वी आर डूइंग दिस आध्यात्मिक साधना, तो इसमें क्या जानना है? एक ही जानना है कि हु एम आई, दैट्स द गोल, राइट? वैसे तो हमें सब पता है, लेकिन दैट इज द कंफ्यूजन, राइट? दैट्स वेयर डिल्यूजन इज देयर। तो यही तो पता करना, हु एम आई, उसके लिए वी हैव टू गो टू शास्त्र, एंड दैट इज द ज्ञान। बट नॉट ओनली नोइंग दैट, कॉम्प्रीहेंडिंग द टीचिंग इज ज्ञान। एक सुपंदी वॉज ए कैरेक्टर, हम लोग को सबको पता है, बचपन में हम लोग कॉमिक पढ़ते थे। सुपंदी को उसके फादर ने बताया कि बेटा सबसे अच्छा सीखने का तरीका, जो हम लोग सब सुनते हैं, कि ऑब्जर्व करो दुनिया में, एंड ऑब्जर्व करो, और जो ऑब्जर्व कर रहे हो उससे जितना सीखोगे उससे कहीं और अच्छा सीख नहीं सकते किताब पढ़ने से, ऑब्जर्व। उसने सोचा ठीक है। तो एक बार वन डे ही वॉज गोइंग एंड देयर इज अ ब्लैक स्मिथ, there's a old comic, right? He was doing making some iron axe वगैरह जो बनाता है ब्लैक स्मिथ, बट ही saw that ब्लैक स्मिथ हीटिंग द आयरन रॉड and then making some shape and then putting the water, that's what they do, like, and then बड़ी एकदम तेज आयरन पे वाटर डालते हैं, ठंडा हो जाता है। तो ही saw, oh wow, if iron somebody is putting water, घर पहुंचा तो उसकी मदर, उस ग्रैंड मदर was sick. What happened ग्रैंड मदर? She said I have a very high fever. उसने टच किया, उसने, अरे ग्रैंड मदर इज लाइक 104, जो भी उससे रहा होगा, इट्स वेरी हॉट। ओह, दैट इज अ ट्रिक, यू नो, इफ समथिंग इज वेरी हॉट, पुट द कोल्ड वाटर, एंड ही गॉट अ बकेट एंड पुट ऑन द ग्रैंड मदर। शी सेड व्हाट आर यू डूइंग? ही सेड नो नो नो, यू विल बी फाइन। देन वो बेचारी को निमोनिया हो गया, पड़ोस वाले सब आ गए, ये क्या कर दिया तूने? बोले नो नो नो, आई सॉ दैट। तो उसके बाद खैर वो स्टोरी गोस कि उसको हॉस्पिटल ले गए। और बाद में सुपंदी को बोला तूने ये क्या कर दिया? उसने कहा नो नो, यू पीपल डोंट अंडरस्टैंड, इफ आई वुड हैव पुट फ्यू मोर cold water bucket, grandmother's, the fever would have gone, because you people don't know. So that is not ज्ञान। आपको कैसे अप्लाई करना है, कॉम्प्रीहेंशन ऑफ दैट शास्त्र। शास्त्र ने बता तो दिया है कि ये संसार है,
इट इज़ इम्परमानेंट, राइट, लेकिन मुझे उसको समझना भी पड़ेगा, एंड दैट इज़ व्हाट भगवान इज सेइंग. सो दैट इज़ ज्ञान. सो कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द टीचिंग इज़ ज्ञान. ना ज्ञान सिर्फ जानना नहीं है, उसको समझ के और जीवन में उतारना है. दैट इज़ ज्ञान, राइट. दैट्स भगवान से. देन भगवान सेज ज्ञाना ध्यानम विशिष्यते. अब ध्यान, हम लोग ध्यान से या सिर्फ मेडिटेशन से नहीं है, ध्यान से मतलब अवेयरनेस. जो हम ये मेडिटेशन करते हैं वो तो सेंटेंस ही गलत. मैंने अभी आई टोल्ड यू माय ऑफिस में नाउ एक्चुअली दे आर डूइंग इट वेरी सीरियसली कॉर्पोरेट. आई डिड इन द एंड आई टोल्ड देम that there is no, this statement is, this is all I'm talking to my corporate people. I said this statement is wrong, but we have to say that we are doing meditation. And then one person, he has been doing meditation for a long time, he said, what, you're not doing meditation? I said, no. If you can, you have never heard a statement that we say that I'm planting a tree. Actually, I'm planting a seed. We don't plant the tree. We say that, but the right statement is I'm planting a seed. Tree will come out. So it's like that. We are creating an environment, and the meditative state will come out of that whole setup process, and that is called meditation. So we don't do meditation. We create an environment. So that's what ये जो ध्यान यहाँ पर है, भगवान जो बोल रहे हैं, ध्यान means the awareness. Once I have the knowledge, I am doing the proper practice, then I'll get that awareness. उसको जो हम लोग ध्यान बोलते हैं वो हम लोग करते भी हैं, अभी करेंगे भी, सही है. Then Bhagavan says we'll spend few more next time on this. But ध्यानात् कर्म फल त्याग, that is the key. This is like a, जैसा कहते हैं ना, पंच लाइन. सी बाकी सब तो आसान है, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, अभ्यास भी कर सकते हैं. आसान इन द सेंस रिलेटिवली, ज्ञान पढ़ भी लेंगे, थोड़ा कॉम्प्रिहेंड भी कर लेंगे, ध्यान भी कर लेंगे. भगवान से ध्यानात् कर्म फल त्याग एंड त्यागात शांति अनंतर. जो शांति चाहिए आपको, शांति से यहाँ मतलब लेट्स बी वेरी क्लियर. हमारे शास्त्रों में शांति शब्द यूज किया है, तो इट इज नॉट जस्ट स्पेसिफिक. शांति मीन्स फुलफिलमेंट, शांति मीन्स आनंद, शांति मीन्स भगवान हिमसेल्फ. शांति कुड बी ट्रूथ. सो इट इज द फुलफिलमेंट, इट इज द जॉय विच विल कम फ्रॉम कर्म फल त्याग. क्योंकि बाकी तीनों में, प्रैक्टिस करने में देर इज अ कर्म, ज्ञान में देर इज अ कर्म, ध्यान में देर इज अ कर्म. नाउ व्हेन देर इज अ कर्म, देर इज अ गोइंग टू बी अ कर्म फल. मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि 10 मिनट ध्यान करूँगा तो मेरा स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा. हियर इज अ रिजल्ट. एंड दैट्स व्हाट ऑल ओवर मेडिटेशन प्रैक्टिस है लाइक दैट. हम सोचते हैं मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए, नेक्स्ट टाइम डॉक्टर के पास जाएंगे, मैं 1 महीने से मेडिटेशन कर रहा हूँ, जरा देखिए जरा रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट, हाँ ब्लड प्रेशर कम हो गया, आई एम हैप्पी. लुक एट दैट. भगवान इज सेइंग नो, दैट इज फाइन फिजियोलॉजिकली एंड ऑल दोज थिंग, दैट इज गुड, बट आध्यात्मिक लेवल पे वो शांति तब नहीं आएगी, क्योंकि इसमें भी कर्म है. सो भगवान इज सेइंग त्यागात कर्म फल त्यागा शांति अनंतरम. कर्म फल का जब त्याग होगा तब शांति आएगी. अगेन, शांति से मतलब यहाँ पर नॉट ओनली द पीस ऑफ माइंड, दैट इज ऑफ कोर्स पीस ऑफ माइंड इज वन, इट कुड बी फुलफिलमेंट. हमारे शास्त्रों में कथा आती है दधीची ऋषि की. दधीची ऋषि एक राक्षस था. हमारी पुराणों की कथाएं इन्हीं प्रिंसिपल्स पे बेस्ड बनी है. अब ये जो देखो ना, कर्म फल त्याग, इसमें वी हैव टू सप्लाई द वर्ड, बिकॉज सेकेंड चैप्टर एंड सेकेंड चैप्टर में पूरा सेकेंड चैप्टर ये बता रहा है कि यू आर नॉट देह. अभी 13 चैप्टर भी आएगा, देह देही, यू आर नॉट देह, यू आर आत्मा. सारा खेल, मोह का मतलब है देहात्म भाव. मैं पूरे टाइम संजय मेहता, शरीर, ये घर, ये मकान, 65 साल का, 70 साल का हो गया हूँ, बच्चा हो गया, देह देह देह, इतना देहात्म भाव है. सो कर्म फल त्याग का जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है वो देहात्म भाव त्याग है. देहात्म भाव त्याग हो जाएगा तो कर्म फल का त्याग तो हो ही जाएगा. प्रॉब्लम तो है कि बिकॉज दिस इज माई कर्म, मैं और मेरा, ममता और अहंता, दैट इज द प्रॉब्लम. सो भगवान दधीची ऋषि की कथा ऐसे मतलब ये प्रिंसिपल सब कथाएं इसीलिए हैं. वो एक राक्षस था वृत्रासुर, वो सबको मारता था और सब परेशान हो गए, इंद्र भी, कि वो क्या करें. तो किसी ने बताया कि वो एक दधीची ऋषि हैं, वो बहुत पहुँचे हुए सिद्ध हैं, और किसी सिद्ध संत
क्योंकि थंडर बोल्ट बनाना पड़ेगा इंद्र के लिए, वो जो थंडर बोल्ट था उनका, वो इंद्र का शस्त्र, राइट। तो वो बड़ा वो किसी की बोन से बनेगा, और दधीची ऋषि की बोन से अगर वो बन जाए तो उससे वृत्रासुर मर जाएगा। ब्रह्मा जी वगैरह ऐसे करते रहते हैं, वो सब कथाएं हैं लेकिन उनका मीनिंग है। तो गए दधीची ऋषि के पास कि भाई वो तो मार रहा है सब लोगों को वृत्रासुर, तो उन्होंने कहा ले जाओ, मेरी अगर बोन से बनना है तो मैं, उन्होंने समाधि लगाई, देह त्याग दी, और ये सब बचा है स्केलेटन ले जाना, देह त्याग दी। त्यागात कर्म फल त्यागा त्यागा शांति अनंतरम, वो शांति को पहुंच चुके थे, इसलिए उनसे देह त्याग हुई। तो ये इसको वी हैव टू रीड रिवर्स ऑल्सो, कि शांति हो जाएगी तो कर्म फल त्याग हो ही जाएगा, और शांति जिस तरह से बोथ वे कैन रीड। सो दैट्स व्हाट, लाइक दधीची ऋषि ने जो त्याग किया, वो उनको परम शांति मिली होगी तभी उन्होंने किया। देह तो थी नहीं, देह त्याग कर चुके थे, फिर वो कथा आई, फिर मर गया। ऐसे ही सेम थिंग, लाइक अब जैसे देशभक्ति की बात हुई थी, कि जो देशभक्त लोग होते हैं सब जगह, भारत में एवरीवेयर, सोल्जर्स एंड ऑल दोस थिंग, दे आर रेडी टू डाई फॉर अ कॉज, दे लव इट, आई मीन द लव फॉर द लैंड, वट एवर मदर लैंड जिसकी भी जो भी हो, एंड दे आर रेडी टू डाई। उसको उसमें दे हैव अ जॉय इन दैट। इतनी सी है दिल की आरजू, ओ मेरे वतन, ओ मेरे वतन, तेरा प्यार अजीब निराला था, कुर्बान हुआ तेरी अस्मत पे मैं कितना नसीबों वाला था, तेरी मिट्टी में मिल जावा, बनके में गुल खिल जावा, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरजू, ए मेरे वतन, ए मेरे वतन। वो कैसे कोई लिख देता है या सोल्जर गा देता है, उसको उसी ये त्यागा कर्म फल शांति अनंतरम, उसको जो फुलफिलमेंट मिलता है, दैट इज शांति। सो भगवान इज, दैट इज भगवान इज सेइंग। सो इन दिस श्लोक, दिस पर्टिकुलर, it is a wonderful shlok. It is a summary of entire teaching, and I think this is what the spiritual path is. If we follow this, I mean, of course, follow in the sense, पढ़ने में तो बहुत आसान लगता है, बट दिस इज इट। अगर ये हो जाए तो बस फिर आध्यात्मिक यात्रा पूरी है। भगवान ने बोल ही दिया, त्यागा शांति अनंतरम। बहुत दो, अनंतरम से मतलब या तो इमीडिएट, इमीडिएट तो क्या है, इमीडिएट तो कुछ नहीं होता है, लेकिन कल्मिनेशन एंड अनंतरम, अनइंटरप्टेड। अभी हम लोगों को जब जैसा भी से फुलफिल, हम लोगों को सिंपल सा ग्लिप्स मिलता है फुलफिलमेंट का, कि जब हमारा कोई बच्चा या हमारा कोई सबसे स्नेह पात्र ब्रदर है या कोई दोस्त है, इफ दैट पर्सन इज हंग्री, द पर्सन यू लव मोस्ट, राइट, और चाइल्ड, फ्रेंड, स्पाउस, जो भी है, और आप कुछ खा रहे हैं और वो आके बोले कि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, तो आप उसी समय कहते हैं यू टेक इट। उस समय जो आनंद आता है, यू आर फुलफिल इन स्पाइट ऑफ द त्याग, देने के बाद जो आनंद आता है, दैट्स व्हाट भगवान इज सेइंग, त्यागा शांति अनंतरम। वो शांति और आनंद एक ही चीज़ है, एंड दैट्स व्हाट। सो ये जो सत्वगुण, और इसका अभी 14 चैप्टर में आएंगे तो पढ़ेंगे ये सत्वगुण जब हम पढ़ेंगे, बट दैट इज़ व्हाट, कि ये जो सत्वगुणी व्यक्ति है, इससे अपने आप होता है, दधीची ऋषि से होता है, या जो भी बाकी हम लोग बहुत सारे हजारों एग्जाम्पल है हमारे हमारे शास्त्रों में, कि फिर अपने आप होता है, उसमें देर इज़ अ जॉय इन दैट, देन देर इज़ नो एंड फोर्स की अरे करना है या छोड़ना है, हो जाता है त्याग। क्योंकि वो पर शांति आनी ही थी, लेकिन उसके बाद अभ्यास, ध्यान, ज्ञान, एंड देन उसके बाद कर्म फल त्याग। सो सारा गोल है कर्म फल त्याग। So we'll stop here. I mean, we'll continue on this because this slok still have few more things to go inside. But we'll do our dhyan and then spend last 10 minutes on some thoughts, right? So let's do our dhyan. Again, इसमें जो आ गया भगवान ने बता ही दिया है कि श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। अगेन ध्यान से मतलब इट इज ऑल अवेयरनेस। जैसे हम लोग वो ये लोग फ्लाइट में भी या ट्रेन में भी, इंडिया तो इंडिया के स्टेशन बोलते हैं कृपया ध्यान ध्यान दीजिए, वो इंडिया के रेलवे स्टेशन, कृपया ध्यान दीजिए, यहाँ से जाने वाली ट्रेन, यहाँ से जाने वाली ट्रेन इस प्लेटफॉर्म की जगह उस प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। अब आप ध्यान नहीं दोगे तो उसी प्लेटफॉर्म पे खड़े रहोगे। सेम चीज़ राइट, कि जीवन में भगवान कह रहे हैं कि ध्यान दीजिए कि आप देह नहीं हैं। लेकिन हमें बड़ा मुश्किल होता है ये समझना कि देह नहीं है, देह तो है, लेकिन दैट इज़ व्हाट टू अंडरस्टैंड कि ये जो देह है यही नहीं है, इसके ऊपर भी बहुत कुछ है हम लोग। दैट्स व्हाट आवर जर्नी ऑफ ध्यान ऑल्सो, वी क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर दैट, राइट।
So again, same, it is coming from 6th chapter. एक बार कभी 6th chapter will repeat it, how Bhagwan is saying this process of dhyan. 10th to 15th shlok, 10th to 14th shlok, Bhagwan has given this process to Arjun. Because Arjun asked in the 6th chapter that, can you tell me कि कैसे मन को संयम करना? And that the chapter itself is called Atma Sanyam Yoga. So again, we'll sit straight. Again, journey is from Panch Tattva, Panch Indriya to Sakshi Chaitanya Atma और परमात्मा, एक ही बात है, आत्मा और परमात्मा एक। लेकिन ये जो 5 इंद्रियां और 5 पंच तत्व विच संसार, इस संसार से अंदर जाके हमें अपना साक्षी रूप देखना है, राइट? विल से ओम, एटलीस्ट ideally we should say om 6 times with a deep like diaphragmatic breathing. Then it helps nervous system, like there is a whole process like it, vagus nerve activates and we get थोड़ा मन को शांति मिलती। लेकिन हमने जो अभी स्वाध्याय किया, स्वाध्याय डज द सेम थिंग। स्वाध्याय करने के बाद, इसीलिए स्वाध्याय के बाद ध्यान में बैठने में ये आनंद होता है कि मन थोड़ा शांत हो चुका होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर भागता है पर फिर भी काफ़ी शांत हो चुका, बिकॉज द सेंसेस आर फोकस्ड ऑन वन थॉट विच इज इन दिस सेज भगवद गीता और भगवान कृष्ण और जो भी भक्ति है। इसके लिए इट हेल्प्स आफ्टर स्वाध्याय के बाद जब थोड़ा ध्यान में बैठते हैं तो विल से ओम वंस, राइट? ओ now again, journey from outside to inside, right? So keep the focus on tip of the nostril and think of Prithvi Tattva. For us, it is Bhudevi. भगवान का ही रूप है पृथ्वी भी। Now shift focus to the tip of the tongue and think of Jal Tattva. Jal is Bhagwan's अपरा प्रकृति, भगवान का ही रूप है। But Jal is outside also, Jal is inside me also. So there is a harmony between me and Prakriti. And Prakriti is also Bhagwan's apara roop, right? So keep the focus on tip of the tongue and think of Jal Tattva, which is Varuna Devata. Now shift focus to the eyes and think of Agni Tattva, which is Surya Bhagwan is the best manifestation of Bhagwan. Bhagwan says Bhagavad Gita, right? Jyotishanam Bhanu Asmi. I am the sun in luminaries. So keep the focus on the eyes and keep the image, bring the image of Agni Tattva in mind. Now shift focus to the skin and feel the Vayu Tattva. Vayu is outside, Vayu is inside also. So we can feel on the skin Vayu. Because we cannot see, we cannot touch, but we can feel. Now shift focus to the ear and feel the space, which is Akash. But how do we feel Akash? We can hear some sound. And sound travels in Akash. That's what we know. There is Akash inside and outside both. Inside me and outside. So by doing this, all 5 senses quietens. Then think that I am not these senses. And behind senses there is a mind, Man. I am not the mind. I am not the buddhi. Actually, Bhagwan says, Mai buddhim niveshaya. That's what we are doing here. We are investing our man and buddhi, putting in Bhagwan. I am not man buddhi, not chitta or ahankar. Because when man buddhi are quiet, chitta and ahankar, there is nothing, memory has nothing to do because there is no buddhi working right now. And ahankar, that ego, aham is gone because there is nothing happening with this body, right? So now think that Bhagwan says in Bhagavad Gita, now you are that thing, I am that Chaitanya Sakshi Atma. Actually, very similar shlok comes into Ashtavakra Gita also. Very similar shlok. That's what Ashtavakra says, the same thing. That I am the Chaitanya Sakshi Atma. And then Bhagwan says, in this state, do Brahma Vichar. Brahma Vichar means we can think of Om or Gayatri Mantra or just image of Bhagwan Krishna, Durga or Shiva or whatever. So this time,
my vritti is Brahmakar or whatever, Shivakar or Krishnakar. Just one thought. And this state, our rishis have said Tattvamasi or Brahmasmi. They were able to say that, right? Om Shanti, Shanti, Shanti. Krishna Kanhaiya Lal ki jai. We'll Sanjay ji, stop. We'll stop here, Parvinder ji, इसीलिए कि now we have 10 minutes. So Okay. anybody has any thought or share you want to just we can spend some time. So let me. You mentioned 4 tattva. Where is the fire one? तो 5 तत्व ना, नहीं, आकाश, आपने नाक पे किया, पृथ्वी, जल, चाल हो गया अग्नि, टेबल, अग्नि, वायु, आकाश. अग्नि पे कहाँ पे फोकस किया था हमने? आइज, Ice keeper. आइस पे. Yeah. I didn't do it. So यहाँ पर पृथ्वी जी आप कुछ कह रहे हैं? पृथ्वी तो हमारे पहले तत्व तो पृथ्वी पे ही हमारे हम ध्यान मैं इन्हीं की तरफ देख रहा था. ये सत्संग के में आप इसको पीठ की जगह पृथ्वी कर दिया कीजिए, ठीक है, अपना नाम चेंज कर दीजिए, रीनेम कर दीजिए. यूनिवर्सल हो गया ये ना. या आई नो राइट, पृथ्वी. या पृथ्वी से ब्रह्म की यात्रा है हमारी. हाँ, पीठ भी यही. पीठ इज स्मॉल पार्ट ऑफ पृथ्वी. हाँ बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वेरी स्मॉल, टाइनी लिटिल स्पेक ऑफ डर्ट. एनीवे, तो हमारा देह भाव से एक कमेंट था, देह भाव त्यागा. तो वो तो अभी काफ़ी मुश्किल है ना, इस बॉडी में है तो उसको मेंटेन करना है, तो देह भाव तो रहेगा थोड़ा सा. तो उसको त्याग कैसे करना है वो तो अब सीख रहे हैं, चल रहा है हमारा जर्नी त्याग करने का. बट जो ध्यान की बात करी ना आपने, कि ध्यान लगाना है जो, उसके बारे में जब आप वो फल का परित्याग करना है तो वो भी ध्यान लगा के ही करना पड़ेगा ना. फल का परित्याग तो होगा नहीं अगर आप ध्यान नहीं लगाएंगे फल के परित्याग में. या आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरे को काम करने से पहले ही फल का परित्याग करना है, उसके बारे में मनन करने की जो प्रैक्टिस है उसको आपको पहले ही करना पड़ेगा ना, तभी फल का परित्याग होगा, अदरवाइज तो काम स्टार्ट ही नहीं होगा. इसका उत्तर नवीन भाई देंगे. I think your question is valid, but look at it. First, look at the irony. Bhagwan has given in descending order how to remember or how to do bhakti. Starting with Nirgun, Nirakar, Nishkam Bhakti. And he already said that, not everybody can do it because, it is difficult for Dehi. That's what he said. So then he lowered the standard and he says, do my bhakti as a Vishwarup. Everywhere there is a God. Whatever you see, all elements, all that, they are all God. That was the fourth step, starting from fifth to fourth step. Then the third step say, if you cannot even do that, just concentrate on your Ishta Devta. So ek Rup Bhakti is what he said, and that you have to do it by using practice repeatedly. Your mind runs away, bring it back. Mind runs away, bring it back, like that practice. And then he says, even if you don't do that, don't worry. Just do Niskam Karma. And what is Niskam Karma? Whatever you do it for the welfare of the society. Do it for somebody else, your family, whatever, but Niskam, you don't get, any results out of it. And then finally, the easiest way he said it, even if you do Sakam Karma, just leave the result of that karma to me. Don't worry about that. And if you do that, that's where your first or final stage of bhakti. And now look at it, the hierarchy he gave us: abhyasa, jnanam, jnanat, dhyanam, dhyanat, karma, phala, tyaga. Here again,
he said it, that's the first thing, giving up the karma phal tyag is the first thing. That's the irony. On the last series, he said that was the fifth last step, and here he's saying is the first step. And I think that there is a lot of commentary on this, and the reason is that one reason given, there are several, one already explained by Sanjay ji, but one reason given is that most of the people can start that easily, that don't worry about the karma fall. Just do sakam, even if you are doing it something for you, your family, wealth accumulation, whatever, but don't think about what is the result of it. So karma phal tyag, that is going to be your starting point. Here the karma phal tyag, because most of the people can do that, that's why it has given the predominance as a number one step. But from second point of view, it also means, if you want to, like Sanjay ji said it, even, the fall of your meditation, you're going to get, what you're going to get out of it, you want the peace and santi, even that, give it up, that also. So it's like, pole vaulter who is going to climb over that. So he carries the pole with it. Ultimately, he has to give up the pole and then jump it on the other side of it. That's, give up your karma phal tyag. That's the second reason for it, So that's why I think, Sanjay ji is keeping us, telling us all the time, this is the best slok of entire, summary of entire Bhagavad Gita, and I agree with it. So लक्ष्मण जी यहाँ पर हैं, तो लक्ष्मण जी विल डू ए भजन बिफोर वी क्लोज. एक भजन कर लेंगे. आप लक्ष्मण जी हैं तो एक भजन 2 मिनट कीर्तन कर लेंगे. लेकिन एक जस्ट बिफोर वी नवीन भाई, इफ यू क्लोज, आई जस्ट वांट टू ऐड समथिंग इफ यू आर. तो ये तो लैडर है, इस पे अपने आप, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है. तेंदुलकर को किसी ने एक बार पूछा था कि यार ये आप छक्के वक्के मारते हो, अभी तो खैर बहुत लोग मारने लगे, लेकिन ही वॉज वन हु स्टार्टेड ऑल दिस style of playing. So somebody asked him, how do you do that? And he said, I don't do that, it happens. Because I used to go 3 a.m. in the when he was 12-year-old. We know the story. His guru was so surprised. This guy is a 12-year-old and he comes 3 a.m., 4 a.m. in the morning for practice. And that is the result of that practice, that he says, I don't hit, it just goes through my blood. Sanjay, that is precisely the point. Meditation is not something you practice. कुछ नहीं करना है, आप भगवान का नाम लीजिए. It is the result of being desireless. बस सत्व गुण बढ़ाते जाना है, सत्व गुण बढ़ाना है, सात्विक लाइफ स्टाइल. There is no answer to that. Yeah, renunciation is not something you practice. It is a result. That is our result. Yeah. बस पता सही. Yeah. Some things are the result of what you do. Exactly right. Yeah. So renunciation, practice. Renunciation or karma phal tyag, when you say that, you are leaving it up to the totality, and the totality, in simple word, we call it Bhagwan, because Bhagwan is considered, that as considered the creator of this world. Bhagwan, with Shakti of Maya, has created this world. So you leave the result to that Sagun, Brahman or Bhagwan. No, there is sorry. There is a very nice. Yeah, that Sanjay ji knows that. Bhaj Govindam, Satsangate, in this. Yeah. There things lead to other things. That slok Sanjay ji can discuss. That tells you how it follows. Exactly right. Yeah. Thank you. May I ask a very quick question of clarification? Is it the renunciation of fruits of action, or is it the renunciation of attachment to the fruits of action? It's I guess it is. वो तो भगवान ने, see, now again we have to, like, आप तो professor हैं. so it is like the teaching, we have to sometime for teaching sake we have to give the statement, right? तो भगवान ने बताया उसके लिए कि ये statement बनाया है, but this is again the resultant of everything. So ये तो भगवान ही बता रहे हैं कि this is the result, right? But result will start from abhyas,
एंड सत्वगुण अभी 14 चैप्टर में जब आएंगे, इसलिए मुझे आई लव 14 चैप्टर, बिकॉज 14 चैप्टर में जो भगवान ने बताया, इफ यू, वो पोल वॉल्ट वाला एग्जाम्पल है कि सत्वगुण इज द फाइनल पोल, वहां पर जाके आपको छोड़ देना है, दैट्स इट। उसके बाद आप अगर वहां तक सही पहुंच गए, तो ये जो सब समझाया, ये तो समझाने के लिए समझाया है, इसमें करना कुछ नहीं है, नथिंग इज टू बी डन इन दिस। क्योंकि हम करने जाएंगे कर्म फल, ये तो सब फिर उलझ जाते हैं, फिर वही, तो उसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सत्वगुण बढ़ाना है, 14 चैप्टर, रजोगुण तमोगुण कम करना है, फिर आप वो ऊपर से निकल ही जाओगे। एंड दैट्स व्हाट अर्जुन ने पूछा, एक जगह पूछा है कि फिर बाद में क्या होगा। सो भगवान से गुणातीत भवा अर्जुन, दैट्स अ फाइनल स्टेटमेंट, कि क्योंकि ये सब कर्मफल, रजोगुण, कर्मफल सत्वगुण में भी आता है कि मैंने थोड़ा दान किया, मेरा नाम यहाँ लिख दिया, मेरा नाम वहाँ लिख दिया। सो भगवान से कि इसमें उलझे रहोगे तो वी, बट समझाने के लिए समझाया, विच इज राइट, समझाने के लिए, बट द गोल हियर इज डोंट जस्ट, वी कैन नॉट प्रैक्टिस दीज थिंग्स, these are the resultants basically. Can I answer Motherji's question? That renunciation means that nothing exists. If you say detachment, that means detachment exists, then you detach. Renunciation means you आपने कर्म कर दिया, after that nothing exists. That's the renunciation. आपके दिमाग में, सोच में कुछ है ही नहीं है, जो हो गया कर दिया हो गया, वो भी किया नहीं, वो भी हो गया. So there is nothing exists. That's renunciation. There is no question of attachment, detachment, or anything. Things don't exist. There is nothing to attach, nothing to detach from. You are already out of that. There is nothing exists. हो गया, कर दिया, आगे चले गए, बात खत्म. You don't even remember that you did something. It just happened. I agree with that. I think you don't even remember कि आपने ये काम किया है. Doesn't matter. I think Madan ji has some point. So you know, the karma phala, tyaga, or attachment to karma phala. So whatever you do in life, if there is a planning requirement and everything, you should be doing that. So that's the only way you are going to do your karma. So Bhagwan, and there is a goal set in the life. You know, you look at your engineering or you look at it, you have a certain goal that I want to do something. And so you have to plan for it and everything that, and obviously when you plan, you are going to plan for the good results and, you know, the better results. That is absolutely correct. But don't get attached to that result, that if it comes positive or even if it comes negative, learn from the experiences and move on the life. That is what the karma phal tyag Bhagwan is talking about it, you know. But one thing, let me finish it. When you are totally sannyasi, renunciation, total, there is nothing to plan, nothing to think. Things will happen automatically. If you're planning, if you're thinking, then you haven't renunciated anything yet. Okay, anyway, that's my understanding. So anyway, Lakshman ji will do the bhajan uske pehle. Madan ji se पूछना है कि इनके दिल में क्या था? इनके दिल में कुछ था. No, but there's a big difference between the two. And in day-to-day ordinary lives, when we give up the fruits of action, that is almost non-practical. As Naveen ji is saying, you have to plan and you have to expect, and everything is transactional in day-to-day living. But what comes out to be the outcome of fruit, if we don't have sleepless nights or staying up whole night because it was such a wonderful result, that is where there is some practical implication that we can modify the behavior. That's why I asked. Yes. नहीं तो उसका जो आप, anyway, we can go in detail, but there are three things, three level we'll all live, right? One is chronological. There is a calendar which is next year 2026. I cannot change that. It is going to be 2026, right? So that's correct. Then there is a psychological level we live, which is beyond, जिसमें कैलेंडर नहीं है, जिसमें हम प्लान करते हैं दिमाग में, साइकोलॉजी. एंड थर्ड इज स्पिरिचुअल. तो स्पिरिचुअल लेवल पे जो परमिंदर जी ने वाली बात बिल्कुल ठीक है. जब एक बार आप नरसिंह मेहता बन गए, फिर कोई फर्क, आपको न फल है न कर्म है, सिर्फ कृष्ण है. तो इसीलिए जिस लेवल पे आप हैं उस हिसाब से उत्तर है. ठीक, अगर तो हमारा गोल तो वही है, तो वहां जाके फिर ये सब खत्म हो जाएगा. लेकिन हाँ, उसके बीच में तो क्रोनोलॉजिकल प्लानिंग वी हैव टू डू, साइकोलॉजिकली वी हैव टू लिव, थोड़ा ब्लड प्रेशर भी ठीक होना चाहिए, फिजिकली भी हेल्थ. एंड द अल्टीमेट इज दैट कि वो जो थर्ड वाला लेवल है, स्पिरिचुअल लेवल पे ये सब खत्म है. ये सब प्रिंसिपल
लागू नहीं होते. Yeah. So that's That's correct. that's very helpful from both. Exactly. Well, So, renunciation is only spiritual. It's nothing less than exactly. that. yes. लेकिन अगर किसी बच्चे को बता रहे हैं तो आपको उसको क्रोनोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल लेवल पे ही समझाना पड़ेगा भगवत गीता. लेकिन मैच्योरिटी के बाद में तो वी हैव टू थिंक भगवत गीता फ्रॉम दैट लेवल. That's where chapter 17 comes. Yeah, exactly. Yeah, that's why I like this Paul Walter example. Yeah. You use all of this to rise high, but at the end you have to leave it to cross the boundary. That came from Parthasarathi. That's genius. Yeah. ठीक है लक्ष्मण जी, भजन करिए, फिर बंद करेंगे. ठीक है. सबको मेरा प्रणाम है. राम राम साहब. आवाज ठीक आ रही है सर? बहुत बढ़िया. आ रही है. Yeah. So you have 5 minutes, Lakshman ji, to do भजन. ठीक है सर. तो पथिक जी महाराज का एक विविध योग है, बुक है, उसमें लिखा हुआ है कि जब आप परम सात्विक अवस्था में होते हैं तो ध्यान में चले जाएंगे, कर्म योग में रासिक अवस्था में चले जाएंगे, लेकिन अब तामसिक अवस्था में हुआ और आपसे कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो कीर्तन करें आप. तो थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं. जल्दी. हरि ओम. वसुदेव सुतम देवम कंस चारुणमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं. नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद. श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्री राम नाम वरानने. श्री राम नाम वरानने. राग भीम पलास में 3 तरह के कीर्तन करेंगे हम, 4-4 लाइन. सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम राम सीता राम 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 राम. Lakshman ji, we lost your audio. सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम. अजी गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे जी गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे जी गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल जय जय प्रभु गोविंद हरे गोपाल हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे. श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन
श्रीमन नारायण 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम 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 राम हरि श्री राम राम रामेति रवि रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्री राम नाम वरानने। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय। चलिए फिर विल मीट नेक्स्ट वीक। मेरा एक 9:15 बजे कॉल है, राइट? या थैंक यू। ठीक है, चलिए हरिओम। नेक्स्ट वीक विल कंटिन्यू ऑन दिस एंड अगले वीक तो भक्त के लक्षण पे बात करेंगे। भगवान क्या बात है। जय श्री कृष्ण जय एवरीवन। श्री कृष्ण, हरिओम। Thank you, Sanjay ji. जय श्री नमस्ते, कृष्ण। see you tomorrow, right? Yeah, see you tomorrow. हाँ, right, कल थैंक यू लक्ष्मण जी फॉर कमिंग। जय हो साहब, थैंक यू। हरि बोल हरिओम। संजय जी कल क्या है? कल नहीं, मैं तो कल जा रहा हूँ चीतू भाई के। आई एम ड्राइविंग टू सिंसिनाटी। वैसे तो कल निर्जल एकादशी है। हाँ, कल एकादशी है, राइट? या निर्जल वन। हाँ, राइट। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीक विल मीट अगेन। धन्यवाद, नमस्ते। ठीक है, प्रणाम। ओके लक्ष्मण भैया। ओके जी, प्रणाम जी, राम राम जी। वंडरफुल टू सी ऑल ऑफ यू। हरि बोल। बोले